Okay guys, so in last class we have studied about the types of quantities, and merely there we have classified the physical quantity in three types. One is called vector, another one is scalar, and the last one is tensor. Okay, so tensor quantity have the different value in the different directions. Okay. Yes, sir. Yes. Now, today we are going to discuss the types of vector. So make the heading types of vector. अब स्केलर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, केवल स्केलर जान लिया कि स्केलर में क्या होता है. वी फॉलो द स्केलर एल्जेब्रा और यू कैन से सिंपल एल्जेब्रा. नाउ ओनली वी फोकस टुवर्ड्स द टाइप ऑफ vector quantities. Okay, only deal with the type of vectors. How many type of vectors? So first Yes, sir. classification, write down the question in your copy. What are equal vectors? Equal vectors. What are equal vectors? So when we talk about the vectors, we are talking about the quantity. Okay, equal vectors. So let's try to understand with a simple example. दो रेलवे ट्रैक हैं और दोनों रेलवे ट्रैक में एक दोनों ट्रेन चल रही है. ओके, दो रेलवे ट्रैक हैं या डबल लेन रोड है. ओके, सपोज ये डबल लेन रोड है. दोनों एक ही डायरेक्शन को ओरिएंट कर रही हैं और दोनों में कार चल रही है. द स्पीड ऑफ द कार इन फर्स्ट लेन इज 20 किलोमीटर पर आवर. सॉरी इट्स एंड वेलोसिटी, स्पीड मत कहिए, बिकॉज स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन लेस होती है, बट वेलोसिटी जो होती है विद डायरेक्शन होती है. एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दो देर आर डिफरेंट दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी. अगर आप कार ए की वेलोसिटी का नाम लेते हैं वी ए वेक्टर एंड कार बी की वेलोसिटी का नाम लेते हैं वी बी वेक्टर, सो यू कैन राइट velocity of vector A equals to velocity of vector B. So what thing is new? That velocity vectors are equal, so their magnitude as well as directions are equal. Such a vectors are called equal vectors. So mark the example. ये चीज़ें जो लिखी हैं प्रिंटेड फॉर्म में वो तो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में है, बट जो मैं लिखता हूँ उसको थोड़ा सा नोट कर लिया करिए, बिकॉज वो आपको नहीं मिल पाएगा. ओके, Yes, sir. सो नोट करो. यस, डन. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are called type of vector are called equal vectors. Okay, पढ़ो अक्षत, what are equal vector? Equal vectors. Two vectors of equal magnitude in same direction are called equal vectors. Yes, exactly. So the example of the two vectors, equal vectors, vector A and vector B. Check the length of the vector. Both the length of vector A and vector B are same. The length of the vector showing is the magnitude. तो दोनों vector equal length के हैं. This means these are equal as well as they are parallel. They are in same direction, so they are called parallel. If they are in opposite direction, they said to be anti-parallel. But when they are in same direction, they said to be parallel. Okay, so ये आपके हो गए equal vector. ठीक है, next. Yes, sir. Talking about the next type of vector is called negative vector. Very easy. Negative vector, very easy to understand. Two vectors are called negative vectors if they are equal in magnitude but they are opposite in direction. Like you going from Sagar to Bhopal with a speed of 54 km per hour. On the other hand, you returning from Bhopal to Sagar with a speed of 54 km per hour. In both the case, the speed is same, the velocity is same, the magnitude is same, but the direction is opposite to each other. So such a vector, you representing the vector Sagar to Bhopal V1 vector and Sagar to Bhopal to Sagar V2 vector, then V1 and V2 are called negative vectors. Note down negative vectors. So here vector A and vector B are negative, their magnitudes are equal, but their directions are not equal, opposite to the each other. Understood? Yes, sir. Okay, read down. पढ़ो बेटा. Negative vectors. Two vectors of equal magnitude but in opposite direction are called negative vectors. Exactly, such a negative vectors. बना लो बेटा इसको. मैग्नीट्यूड ध्यान से इक्वल बनाइएगी. मीन मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर representing the magnitude, so make the length same for both the vectors. Okay, but if the vectors magnitude are not same, then what they should called? They are called anti-parallel vector. If you have two vectors, vector A is large and vector B is smaller, then name the two vectors are anti-parallel vector. Okay, or they can say, you can say them opposite vector because they having the direction opposite to the each other. So Yes, sir. negative vectors are the special case of anti-parallel vectors. So negative vectors may be considered as a special case of
anti-parallel vectors. Clear? Yes, sir. Yes. So negative vectors are the special case of negative vector. See here, this is the vector A, and this is vector B. Yes. So what these vectors are called? Anti-parallel. As their magnitude are not equal, so they are not said to be negative vectors. So these are called anti-parallel. Okay. Vector A, Yes, sir. vector B. These are called parallel vector. These are called parallel vector. ये आपके parallel vector है. चलिए, तो ये हो गया आपका डन. नेगेटिव वेक्टर्स हो गया आपका. ओके, नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर. ओके, नेक्स्ट जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ओके, इसको आप जो है समझने की कोशिश ऐसे कीजिए कि आपके पास ये कोई कंप्लीट वेक्टर है, आपने इसका मैग्नीट्यूड छोटा करना शुरू किया, तो आप इसको इतना करके लेके आए तो ये इतना हो गया. या मुझे पीछे कुछ नहीं बनाना था, इतना कर दिया. आपने और छोटा कर दिया तो ये इतना हो गया. आपने और छोटा कर दिया, आपने इतना हो गया. आपने और छोटा कर दिया, इतना हो गया. इसको बिल्कुल समेट करके एक पॉइंट पे ले आओगे तो आप इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाओगे. मतलब ये नहीं बता पाओगे कि ये वेक्टर एक्चुअली जा कहाँ पे रहा है. सो दैट टाइम दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और यू कैन से null vector. So a vector with magnitude 0 is called zero vector. So what is the magnitude? 0. You can say here this vector is AB, और बट जब छोटा करते गए तो A पॉइंट पर ही शुरुआत हुआ और A पे ही ख़त्म हो गया. सो वेक्टर A हमारी ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो गई. सो व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर वी आर? जीरो वेक्टर. Null Okay, vector. Yes. null vector, zero vector, void vector. Okay, yes, read out a vector. Zero vector or null vector. A vector whose magnitude is zero, known as a zero vector or null vector. Its direction is not defined. It is denoted by zero. Velocity of a stationary object. Acceleration of an object moving with uniform velocity and resultant of two equal and opposite vectors are the examples of null vector. Yes, velocity of the stationary object, acceleration of an object moving with a uniform velocity, and resultant of the two equal and opposite vectors is the example of null vector. So very important. आपसे मैंने बोला कि एक वेक्टर आपने यहाँ लगाया, सो दिस इज़ 5 न्यूटन, एंड एक वेक्टर आपने अपोजिट लगाया, दिस इज़ 5 न्यूटन. सो मैं आपसे बोलूँगा व्हाट इज़ द नेट फोर्स. सो आप अगर आंसर जीरो लिखते हो दैट इज़ गलत, वो रॉन्ग है. आपको आंसर लिखना पड़ेगा जीरो वेक्टर, बिकॉज वेक्टर प्लस वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड योर आंसर शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी विल बी जीरो वेक्टर. पर ही समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. हाँ, बिकॉज आंसर वेक्टर और वेक्टर का जीरो आएगा, जीरो वेक्टर आएगा ना. वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर होता है, तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जीरो नहीं बोलो, उसको बोलो जीरो वेक्टर. समझ में आया? मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन का पता नहीं है, डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, कुछ भी मान सकते हो. क्लियर हो गया अक्षत? यस सर. ये वाला नहीं बेटा, दूसरा वाला ले लो. चलो, वो ब्लू वाला कहाँ है? ब्लैक वाला मुझे नहीं पता. देखो जहाँ तुमने रखा हो, मैं तो नहीं ले गया था क्लास. चलो, ये हो गया. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन भी ये आपके एग्जाम में आएगा. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है देखिए बच्चों. जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई लेंथ है, ये मान लीजिए कोई लेंथ है, ये रास्ता है और इस रास्ते की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. आपको ए से लेके बी तक का रास्ता दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इन शॉर्ट आपने ए से लेके बी तक के वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर ए. वेक्टर ए. ये मान लीजिए आपका घर है और ये आपके घर से नियरेस्ट कोई चौराहा है, जो भी आपके घर के पास चौराहा है, सर्किल है, वो ये है. आप तो चले गए और वापस भी आ गए, आप अपने घर में बैठे हैं. मैं बोलूँगा क्यों भाई, मुझे चौराहे तक जाना है. तो तुम क्या करोगे? मेरी उंगली पकड़ के छोड़ के तो नहीं आओगे, तुम अपना हाथ कर दोगे, बोलोगे सर चले जाओ, ऐसे इस तरह बता दोगे कि इस डायरेक्शन में. तो ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन केवल बताता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. तो कैसे समझो इसको, कैसे? ये वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर तोड़ दूं, वेक्टर ए का छोटा सा डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ए कैप, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ओके, सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब वन मैग्नीट्यूड
इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब आपने 100 कदम चले हो तो एक कदम का वेक्टर बना दो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो लिखो बच्चों कॉपी में, द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड the vector of unit magnitude in the direction of a given vector is called unit vector. The vector of unit magnitude in the direction of a given vector is called unit vector. गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सर एक बार और बताएं। नॉर्मल वेक्टर से कंपेयर करके बता दो एक बार उसको। हाँ फिर से बता रहा हूँ, पहले डायरेक्शन लिख लो, पहले वो चीज़ लिख लो, डेफिनेशन। द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वन यूनिट का जो वेक्टर होगा, द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन समझ में आई? यस सर आई। और समझो, ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर है बेटा। कंप्लीट वेक्टर यहां से लेके ए से लेके बी तक क्या है? वेक्टर ए है। आपको नाम देना हो तो ए बी वेक्टर भी दे दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन शॉर्ट मैंने वेक्टर ए दे दिया। अब मैंने वेक्टर ए की डायरेक्शन में परी एक छोटा सा वेक्टर, नन्हा कदम, मान लो ये 10 कदम का है तो मैंने एक कदम का वेक्टर सपोज कर लिया, दिस इज वेक्टर ए। तो परी ध्यान से देखना, अगर मैं ए कैप को इसकी लेंथ के बराबर फोल्ड कर दूं, लेंथ मतलब ए का मैग्नीट्यूड, यस, अगर ए कैप को मैं फोल्ड करके इसके लेंथ के बराबर ट्रेवर्स करूं तो क्या मुझे कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। एक कदम के वेक्टर को अगर मैं फोल्ड करते 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 पूरा यहां तक ले आऊं तो मुझे कंप्लीट वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। अक्षत, अगर यूनिट वेक्टर को फोल्ड करते हुए एक कदम को चलते चलते मैं 10 कदम पे चले जाऊं तो मुझे 10 कदम का कंप्लीट वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। सो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर में क्या, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए, मॉड वेक्टर ए मतलब लेंथ उसकी। समझ में आया? तो इधर पे ए कैप की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी। हाँ 1 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल सही। ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस सर। ए कैप जो होता वही है, वेक्टर ही है, मगर उसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। जैसे तुमने किसी को 5 न्यूटन का घूसा मारा तो उसका वेक्टर तुमने ये शो किया, मगर 5 न्यूटन का जो 1 न्यूटन बनेगा वो ये होगा। ऐसे 1 1 मिलते मिलते इफेक्ट में क्या बनेंगे? 5 बनेंगे। समझ गए? यस सर। तो जो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एफ कैप। अगर एफ आपका 5 न्यूटन है तो ये कहलाएगा 1 न्यूटन। समझ में आ गया? यस आ गया आ गया। सो द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। समझ गए ना? तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देख लो, ये पूरा कंप्लीट वेक्टर ए था, वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर, इसका छोटा सा नन्हा सा कदम ए कैप इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अगर कुछ भी नहीं लगा रहे हो तुम किसी के ऊपर तो वो मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नोट कर लो, ये काम की बात। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये है भाई आपका यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। पढ़ दो अक्षत। अ वेक्टर, a vector having unit magnitude is called a unit vector. A unit vector in the direction of vector a is given by a cap equal to a upon a. हाँ एक्चुअली वो ऊपर वाला वेक्टर ए अपॉन ए है ना, ऊपर वाला वेक्टर ए है क्योंकि ऊपर वेक्टर रहेगा और नीचे रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। सो दिस इज वेक्टर ए अपॉन ए मतलब मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। समझ गए ना? यस सर। अच्छा, कभी कोई नंबर बोल्ड लेटर से लिखता हो तो वेक्टर ही कहलाता है। अगर कोई बोल्ड लेटर से लिखा हो ज़्यादा गढ़ा करके तो एक्चुअली वो वेक्टर ही है ना। इंटरनेशनल नोटेशन पढ़ो। अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। A unit vector is unitless and dimensionless vector that represents direction only. हाँ यस, यूनिटलेस होती है क्योंकि उसकी यूनिट 1 होती है और ये डायमेंशन इसकी जो होती है वो ओरिजिनल वेक्टर की इक्वल होती है। वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी ही बनेगी।
चलिए बच्चों हेडिंग डालिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बच्चों हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, अब 3D में। सो दिस इज एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। जेड एक्सेस मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग हवा में, यदि मान लो कोई पॉइंट, अभी तक हम लोग जैसे कोई पॉइंट पे हैं, मान लो आपके रूम में पंखा लगा हुआ, उसकी टिप पे आपको जाना है, तो आप कहीं पर भी ओरिजिन कंसिडर कर लो और अब चलना शुरू करो। तो बस इतनी सी बात समझो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक कदम होता है, एक्स एक्सिस का जो पहला यूनिट वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनता है वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप। तो लिख लो, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। नोट करिए। I cap is the unit vector along x-axis, Yes, sir. j cap is the unit vector along y-axis and k cap is the unit vector along z-axis। समझ में आ गया? Yes, sir. तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के along यूनिट वेक्टर, और एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। As these vectors are perpendicular, that's why they are called orthogonal unit vectors. Any doubt? No, sir. Okay. Now what is the use of it? Let's see. अगर आपके एक रूम में जो पंखा लगा हुआ है, मान लीजिए उसमें, उस पंखे तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना पड़ता है, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चलना पड़ता है और जेड एक्सिस में 5 यूनिट चलना पड़ता है। तो ओरिजिन से उस पंखे की पोजीशन को मिला दीजिए, तो आपका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा आपके पास एक्स में कितना चला बेटा 2, सो इट विल बी 2i 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। नोट कर लो cap. बच्चों कॉपी में। Vector r equals to 2i cap plus 3j Sir, जब cap हमारे पास plus 5k cap. What is this? This is the position of point, your tip of your fan, in the terms of vectors. So that's why it is called position vector of point P. So this is called position vector of the point, as it representing the position of your fan tips. Sir, It is the position vector. हाँ बोलो। सर जब अपने पास कोऑर्डिनेट्स थे रिप्रेजेंट करने को, तो अपने को यूनिट वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखो कोऑर्डिनेट एक अलग मैथमेटिक्स है, समझ गए, और हाँ। और वेक्टर एक अलग अलजेब्रा है। दोनों काम एक दूसरे के पैरेलल करते हैं, है ना। बट कोऑर्डिनेट में एक केवल एक सेंस होता है। जैसे कोऑर्डिनेट में अगर कोई लाइन बनाओ आप, तो उस लाइन में 2 वेक्टर एसोसिएट कर सकते हो, आगे से पीछे और पीछे से आगे। Yes, मगर sir. कोऑर्डिनेट में वेक्टर का सेंस नहीं मिलता है। बट वेक्टर के आ जाने से एक लाइन 2 तरीके से पढ़ी जा सकती है। जैसे आपने कोई लाइन सेगमेंट बनाया 8b, ओके, तो Yes, वेक्टर sir. के आने से वो लाइन सेगमेंट 2 तरीकों से पढ़ी जा सकी कि ए से बी जा रहे हो या बी या से B से ए A आ जा रहे रहे हो, हो। समझ गए ना। Yes, तो sir. वेक्टर ये फैसिलिटी आपको देता है। बाकी ये बात बिल्कुल सही कि सर जब हमारे पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट थे तो आपने इसको ये क्यों बना दिया आई कैप जे कैप के कैप। ये कोऑर्डिनेट आई कैप जे कैप के कैप बताता है कि आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 कदम चले हो, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 कदम और जेड एक्सिस के लॉन्ग 5 कदम। हाँ। So that's will it will become 3i cap plus 2j cap plus 5 k cap. K Clear? cap. Next Yes, is sir. co-initial vector. The vectors having same initial point are called co-initial vector. बेटा orthogonal unit vector पढ़ दो जल्दी से। Orthogonal unit vector. The unit vectors along the direction of orthogonal axis, that is x-axis, y-axis, and z-axis, are called orthogonal unit vectors. They are represented by I cap, j cap, and k cap. Next, Co-initial vectors. Vectors having a common initial point are called co-initial vectors. exactly. बना लीजिए co-initial vector. Here OA vector and OB vector are called co-initial vector.
सर ये आई कैप, जे कैप और के कैप के ओरिजिन को अपन कुछ नहीं कहते। नहीं, ओरिजिन को कुछ नहीं कहते। ओरिजिन, द पोजीशन ऑफ ओरिजिन इज 0,0,0, so हाँ। that is called zero vector. So you can say or nominate as origin as zero vector as 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. यस सर। 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. Clear? यस सर। Now co-initial having the Yes, sir. same initial point, vectors having the same initial point are called co-initial. These may be many. I have shown here only the two vectors, but they may be any number of vectors there may be. Okay, so you can say vector A, vector B, vector C. More vectors you can take. Okay, but they having the same initial point. Okay, यस सर। so this point, if this point is O and this point is A, normally we taking this vector as vector A. If this point is O, this point is B, then we call this is B vector. Okay, what are vector A vector and vector B vector? Small a vector is the position vector of point A, and a small b vector is the position vector of point B. Why these are position vector? Because these vectors are represented with respect to origin, so they are regarded as position vector. No down. So these are co-initial vector. समझ में आया अच्छे से? यस सर। Yes, sir. Okay. Let's come to the next variety of vector. Co-linear vector. Yes, co-linear vector. Read करो बेटा. Collinear vectors. Vectors having equal or unequal magnitudes but acting along the same or AB parallel lines are called collinear vectors. Yes, vectors having the equal or unequal magnitude but acting along the same or AB parallel lines are called collinear vectors. Look, the vectors having equal or unequal magnitude doesn't matter, but they acting along the same or parallel. Like this is a pole, ये कोई डंडा है और आप इसको खींच रहे हो यहाँ से. ऊपर आप 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो और नीचे आप 2 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो. तो आप चाहो या ना चाहो, ये 5 और 2 दोनों मिल करके 7 बना के ही काम करेंगे, क्योंकि ये Yes, भी sir. खींच रहा है और ये भी खींच रहा है. यस और नो? Yes, sir. हाँ, सो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है. तो वेक्टर का सबसे बड़ा नेचर होता है कि आप इसको शिफ्ट करके इसके ऊपर ले जा सकते हो. तो जैसे आप 2 न्यूटन को खसका के इसके ऊपर ले जाओगे तो 2 न्यूटन इसके साथ मर्ज हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर 5 और 2 एक ही वेक्टर के ऊपर एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहे हैं. दे हैविंग द कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, सो दीज दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड Collinear vectors. linear vectors. The vector having equal or unequal magnitude but acting along the same or AB parallel lines, acting along the same parallel lines. So you can say there's both of these two vectors are acting along the same parallel line. These vectors are called collinear vector. नोट कर लीजिए बच्चों, what are collinear vector? collinear vector नोट कर लीजिए. Yes, sir. डन. Vectors की सर 3 ही डायमेंशन होती है ना बस. Yes, sir. Next is coplanar vector. Coplanar means these the vectors are in single plane are called coplanar. Like this is a plane. ये आपका जो स्टडी टेबल है वो प्लेन है, उस पर आप 3-4 लाइंस बना लीजिए अपने मन से, कैसी भी बना लो, वो एक प्लेन पे है. तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो वो क्या होते हैं, कोप्लेनर. लिखिए, द वेक्टर्स हैविंग द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज, पढ़िए अक्षत, एक मिनट Localized vector. कोप्लेनर पढ़ा दिया ही ना? शायद, हाँ पढ़ा, शायद क्या अभी पढ़ा है ना कोप्लेनर वेक्टर? हाँ पढ़ा तो दिया आपने. हाँ आप पढ़ लो, चलो कोप्लेनर वेक्टर पढ़ो. Coplanar vectors. Vectors acting in the same plane are called coplanar vectors. चलिए पढ़िए लोकलाइज्ड. Localized vector. A vector whose initial point is fixed is called a localized vector. यस एग्जैक्टली, अगर आपका कोई फिक्स पॉइंट है, जिस जैसे फोर्स लगा रहे हो किसी फिक्स पॉइंट पर लगाओगे, उसको बोलेंगे आपका लोकलाइज्ड वेक्टर. नेक्स्ट पढ़िए. Non-localized or free vector. A vector whose initial point is not fixed is called a non-localized or a free vector. एग्जैक्टली, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो कि आप कहाँ पर लगा रहे हो. जैसे कल मैंने बताया था रोटेशन वाले वेक्टर, कोई फिक्स जरूर पोजीशन नहीं है, तो ऐसे वेक्टर होते हैं नॉन लोकलाइज्ड होते हैं. नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर क्या है? इन अ स्पेस टू पोजिशनेट एनी पॉइंट वी डिफाइनिंग द वेक्टर दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. मतलब स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम उसे जिस पॉइंट से डिफाइन करते हैं, जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. लाइक एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मिला दो, ये कहला जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर. एंड वेक्टर आर बिकम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. पढ़ो. Position vector. A vector representing the straight line distance and the direction of any point or object with respect to the origin is called a position vector. ओके, ये डिस्टेंस दिखा रहा है और ये डायरेक्शन दिखा रहा है ना. ये डिस्टेंस भी बता रहा है, ये रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. ये बात भी सही है. और दूसरा, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द position of any point with respect to some given reference is called position vector. लिख लीजिए. Yes, sir. The vector that representing the position of a point with respect to some given reference or origin is called position vector of that point. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये हो गया पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट. अपना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए एलजेब्रा ऑफ टू वेक्टर्स. एलजेब्रा ऑफ टू वेक्टर्स, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, टू नहीं, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स मतलब जैसे हमने पढ़ा था नंबर, एलजेब्रा ऑफ नंबर्स क्या पढ़ते थे हम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दुनियादारी. अब हम वेक्टर्स का एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मतलब वेक्टर्स की हम फिनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे. चलिए ठीक ना. तो इसमें हम वेक्टर्स के एलजेब्रा को पूरा डिटेल में जानेंगे. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले लिखो बच्चों, लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में लिखिए फर्स्ट, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पहला पॉइंट लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सो what we go to learn here, how we can add the two vectors. Okay, let's see how can we add the two vectors, in what way two vectors may be added. Okay, so listen, what or when we can add the two vectors, there is a rule. So to adding the two vectors, the rule is called triangle rule of vector addition. Write the heading. First rule to add the vectors is triangle rule of vector addition. So we can add the two vectors with the rule triangle rule of vector addition. So there are two rules. One is called triangle rule and second one is called parallelogram law. One is called triangle law and second one is called parallelogram law. So write the first heading, triangle law of vector addition.
triangle law of vector addition. So what is the concept in triangle law of vector addition? Listen first. Triangle law of vector addition says that if you have two vectors, you have two different vectors. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिनको आप जोड़ना चाहते हो, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये आपके पास वेक्टर बी है. Clearly you can understand that these two vector representing the consecutive sides of a triangle. देखो ध्यान से, ये जो वेक्टर्स हैं ये किसी ट्रायंगल की लगातार दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. So these two vectors representing the two consecutive, or you can say back to back, or you can say successive, लगातार को मतलब इस तरीकों से आप बोल सकते हो, consecutive, back to back, successive sides of a triangle. अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो लगातार साइड को दिखा रहे हैं, then the third side will be the sum of given two vectors. तो ये जो थर्ड साइड होगी बेटा, ये होगी वेक्टर a प्लस बी. बट याद रखिएगा इसका ऑर्डर जो रहेगा a से b, b से c, ऐसा नहीं रहेगा, अपोजिट ऑर्डर रहेगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो स्टेटमेंट लिख लो पहले. If two vectors are added together, representing two sides of a triangle, two consecutive sides of a triangle, representing two consecutive sides of triangle, then the third side will represent the result of, या result कह लो या sum कह लो, third side will represent the sum of the given two vectors, taken in opposite order. टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये ए था, ये बी था, और अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता इसको तो मेरे को लग रहा था ये क्लोज होना था सी, बट नो, ऑर्डर इसका क्लोजिंग नहीं होगा. इसका जो ऑर्डर है वो क्लोजिंग नहीं होगा, इसका ऑर्डर अपोजिट होगा, नीचे से ऊपर की तरफ. तो ये ए है, ये बी है, तो जो इसका सम निकलेगा वो आपको अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा, और दोनों बेसिक वेक्टर्स का क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा. So the third side of triangle will represent of the given two vectors taken in opposite order. याद रखिएगा अपोजिट ऑर्डर में लीजिएगा, जो सम आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, ये डेफिनेशन थी. अब पढ़ दो अक्षत. If the two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, and then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. If two vectors A and B acting at a point are inclined at an angle of theta, then their resultant. Wait. अगर दो वेक्टर हैं बच्चों, वेक्टर ए और बी हैं, और वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है. ये अंदर वाला एंगल मत लेना, बाहर वाला एंगल. क्यों? वेक्टर का एंगल लेने का रूल होता है कि जो आपको एंगल लेना है कैसा है. ये देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये बी है, तो कौन सा एंगल थीटा होगा? ये एंगल थीटा नहीं होगा. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला कहलाएगा. अच्छा, क्यों कहलाएगा? आपके पास एक वेक्टर के लिए ज़बरदस्त रूल होता है, आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो. तो एक काम करो, इसको पैरेलल शिफ्ट करते इसके ऊपर लेके आओ. तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था. तो एक्चुअली आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए हो, तभी वो लगातार साइड्स बन गया. तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. तो एंगल थीटा कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ. समझ में आया? यस सर. तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये बनेगा इसका रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी. क्लियर हुआ?
Yes, sir. हाँ, तो थीटा कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। अब मैं बताऊंगा इसको आपको कि इसका रिजल्ट की वैल्यू क्या होती, तो लिख लें अभी आर इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नोट कर लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर का लेंथ आएगा, जो सम आएगा, वो कितना होगा, आर इक्वल्स टू वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। Yes, sir. ये होगा दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हेडिंग डाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट sir. कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देख लो, इफ टू वेक्टर्स a and b are acting at a point inclined at an angle theta, then the resultant r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Yes, sir. अब एंगल देख लो कि जो रिजल्टेंट गया है, ये जो रिजल्टेंट गया है, ये इसके साथ कितना एंगल पे झुका हुआ है। तो वो एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखो, tan बीटा लिखो, लिखो इफ द रिजल्टेंट r subtends at angle बीटा विद वेक्टर a, अगर रिजल्टेंट वेक्टर r जो है वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है वेक्टर a पर, देन व्हाट इज देयर, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। नोट कर लो, b sin थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस b cos theta. So this is the resultant of the two vectors.